हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज। दोस्तों आज बड़ा मजा आने वाला है। आज आई थिंक मैं वन ऑफ द बेस्ट फेस टू फेस रिकॉर्ड करने वाला हूं बिकॉज आज के जो गेस्ट है ना वो बहुत स्पेशल है। और मैं काफी दिन से सोच रहा था कि वो समय दे दे तो मुझे मौका मिल गया और उनसे आज बात करेंगे। टुडे इज गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस, सो स्टे ट्यून्ड, सी दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस शेयरिंग आपको जो आज मिलने वाला है, मैं दावा करता हूं कि ऐसा कंटेंट आपको कभी कहीं नहीं मिला होगा। सो आई हैव टुडे विथ मी अ गेस्ट हु इज वेरी स्पेशल। पीपल know him through his very sensible tweets which he does. I've been interacting with him for a few days and I've realized that what he writes on Twitter and what he believes in makes so much sense. और मुझे लगा कि ये आके अगर कुछ भी बात कर देंगे तो हमको काफी अच्छा वैल्यू एडिशन मिलेगा। So I'm very glad, I'm very happy to welcome Mr. Pran Kadria. Hi Vivek. Hello Pran, how are you? Very well, thank you. So I'm going to call Pran irrespective of what age you look like. I hope it's okay. It's a very friendly conversation. Absolutely. Thank you so much, Pran. Very excited to record this one with you. I've been following you on Twitter and you make so much sense. And glad that at this profile of yours, I mean, you have worked in various profiles. You were running a business earlier and now you are a full-time trader. It gives me such pleasure and excitement to talk to people like you and learn your wisdom, get your wisdom and learn so much about markets from you. Thank you for such a nice introduction. Thank you. It's my pleasure. So, Pran, the way we record this is a bit about you so that we all know about you more. And then we want to discuss a very important topic today with you, risk management. I think what differentiates a good trader from a not so good trader is the quality of risk management a good trader goes through. And you are really a good trader, I know for sure. So before that, let me just talk about you. So Pran, please tell us about you, your history, your journey in market. Well, I was born in Bombay, moved to Delhi when I was 11, went to IIT Delhi, then I did my chartered accountancy, joined the family business, ran the family business till 2006. And in 2006, I was at a stage where I was burnt out. It was a very stressful kind of business. And I had a young daughter who had just started going to school. And I remembered my old days in Bombay, and you know how Delhi is for girls. So I thought it was a better idea to have her grow up in Bombay. So I decided to move to Bombay. And I obviously had a little bit of a falling out with my brothers on the business. I wanted to get out of cash out the business because I thought we had reached a stage where it was difficult to scale up any further, and they didn't. So anyway, it worked out. So I came to Bombay in 2006, and I admitted my daughter in school. And as you know, in any business, business people have a lot of income, but they don't have any money. All their money is in the business. Yeah. So not being that actively involved in the business, you have a lot more confidence in a business where you are actively participating in. And when you are not participating that actively in the business, you think of security. And as I said, I had a young daughter, a wife. And so I said the first priority is to reorganize my assets and collect enough cash so that no matter what happens, at least my lifestyle is not affected. And I was fond of trading. I was doing a little bit of trading on the side, not seriously. And then I started trading in a small way. At the same time, I started realigning my assets. I wasn't very, for 2 years, I was just collecting funds, doing a lot of unsuccessful trading on the side. And then I decided that I had to, if I was going to do it in any meaningful way, I had to be properly trained. So I went through every kind of course that you can imagine. I went through all the
trainers in India. Then I went to the US, and I went through several trainers there as well. And finally, the two trainers who really influenced me and who हेलो, आशा करता हूं कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस तरह के वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करूं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप मेरे इस प्रयास से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, बिकॉज बेल से ही पता लगता है कि कोई नया वीडियो मैंने रिलीज किया है। धन्यवाद। I think put me on the right track are Dr. Van Tharp, who taught me that your beliefs are your most important constituents of your trading, and if your belief system is not aligned to the way that you trade, you will never be successful. And then SMB, where it was a revolution. I started with trading futures, trading intraday, not futures. In the US, you're just trading the stocks. And then I was doing okay over there, and then I got into options, and that's where I found my calling. Because I'm not very comfortable with a 50-50 kind of situation. And when you're trading stocks or when you're trading futures, it's a 50-50 call. You might say that you have some way of predicting what future prices are going to do. I don't believe that. So I like to have the odds in my favor, and with options, I think you can structure trades where you might earn a lot less, but you might earn not a lot less, you earn less, but you have a far greater probability of success. And that is the way how I gravitated towards. I came back to India. I trained over there. I was in and out of India and the US. And I started seriously trading in 2000, I think 2009. Okay. And I think 2011 when I started, when I could say that I'd become a consistently profitable trader, 2011, 2012. Okay. Since then, I've had several iterations as a trader. And also, I have been through several market types. And every time I go through a different market type, my style changes. So I don't say that I will trade this way regardless of what the market is doing. All my trading is dependent on how I perceive the market, the behavior of the markets. Okay. So that's a little bit about myself. Okay, that's very interesting, very encouraging. Pran, just one thing. I have a lot of my viewers who are also Hindi speaking. So maybe at times I will ask you a question in Hindi, and if you can oblige us by answering in Hindi as well. Zarur, bilkul. Sorry, so I have some cough problem today, so you have to bear with this as well. So, you represent a type of a life or a career where you have done business, you have made money in that business, and you had an exit, and now you're using that money to build on further on this. I get so many people, especially last 6 months, what has happened, a lot of people who are into business have find business not to be exciting enough, lucrative enough, and they already have some capital and they are looking to get into stock market as a full-time occupation, leaving their existing business. And the average age of these people would be say around 35 or so. So before I start the technical discussion, based on your background, what would you suggest to them? Well, trading is a very attractive, it's a business. Let's be very clear about it. It's a business. It's not a something that you can take on part-time if you want to make money out of it. If you treat it as a hobby, hobbies require money and you will end up paying for them. Yeah. So it's a full-time thing, and any business, whether you're running an ice cream stand or whether you're running a industry or whether you're running a trading business, the rate of success is very low. You're not going to make only 3 or 4% of the people are going to make it, and 97% are going to crash and burn. That is one. And the second thing is you need to have realistic expectations out of the trading business. I find people on Twitter, I see it every day. In fact, I sometimes want to stop people from thinking the way that they think. You look, a person like, you go through the
best businesses. You take Reliance Industries, or you take Hindustan Lever, or you take all these top businesses. They hire the finest talent. They have brand value. They've done everything they can to establish the business. And at the end of it, in India, there are barely 40 or 50 companies which earn more than 15 or 20% return on equity. Right. So, I see people over here who are claiming to earn 60%, 100%, 150%. And I tell the first thing you should ask yourself is that why should Mukesh Ambani has access to the finest talent in the country. And if trading was that easy, and if Mr. Nathulal sitting in a 1 lakh a month job, working out of a 1 BHK in Kandivali on a simple laptop computer with some charting software and backtesting software, if he could generate 60% and say that I've got a scalable business which I've mastered, why would Mr. Ambani hire 100 of such people, give them 5 crores and say that, okay, please go out and trade for me? So it's not happening. And I worked in SMB in the US, and they are one of the top prop firms in the US. Yeah. And they hire the best talent. They get thousands of applications, and they have a very rigid criteria. They hire the finest. They've got it down to a T. They'll hire people they test for your aptitude, they test for your ambition, they test for your suitability, psychology, everything. They hire these people. They put them through a very rigorous training program, of which 70 or 80% fail. And it takes them 2 years after that to start making the kind of money which pays back the firm for the kind of investment it has made. And even then, I've sat with those traders, and 30%, if you're generating 30-35%, you're doing exceptionally well. There are very few traders who generate that kind of money. So when I look at people here who say that everyone here is making 60-70%, which so I think, I don't know, they might be making it also, but not on any decent size of capital which will give you a good living. So the first thing you need to do when you come into the business is that you need to have reasonable expectations, and you will not make any more money out of trading than you will make out of running any other sensible business. If you, unless you want to take a level of risk, you might make it for 5 months, 6 months. Eventually, you'll crash and burn, and you'll be back to where you started from. So if you're in it for the long term, have realistic expectations. Expect that you will have to work very hard. Expect that there will be a long and steep learning curve, and that it will take you 2 or 3 years. Actually, they say 10,000 hours. I think that's a very good representation of. You can do any. The computer back testing or modeling is not going to cut down that time. You need to have a lot of trading experience before you can really start earning a living out of trading. So I was talking to someone just before our conversation, and this person has HR consulting business, and he has a capital of 3 lakh right now, and he's expecting a decent return per month so that he can move out of that business and get inside this business full time. So I found it to be slightly ambitious. With 3 lakh, can you think of leaving existing business and get into this business? So what should be the realistic expectation according to you in terms of ROE? That depends on what your expectation is and what your requirement is. But I would say if you're getting into full-time trading, I would not do it with less than about 1 crore. Okay. I know it's going to disappoint a lot of people, but see, you're going to lose some money in the beginning. And if today, if you want to earn less than 2 lakhs a month, a lot of your in a business, when you're employed or when you're running a business, a lot of your expenses are taken care of. When you're trading, everything is on you. So I think today, if you're living in a city like Bombay or Delhi, you need 2 lakhs a month. If you are living in a smaller town, maybe 1.5 lakhs a month with the family. And I don't think that you should have less than 1 crore rupees to realistically expect to make that much money consistently in a way that will support your lifestyle.
बट चलिए, वो तो 1 करोड़ तो बहुत कम लोगों के पास होते हैं, और लोग चालू तो छोटा सा ही करते हैं और एक्सपेक्टेशन बड़ा होता है। बट थोड़ा सा अगर आप इस बात पे बात और कर सकते हैं कि अगर छोटा कैपिटल है तो मैं क्या करूं, मेरे पास उतना ही है, व्हाट डू आई डू? आप सीखो, आप किसी ब्रोकरेज फर्म, किसी फाइनेंशियल फर्म में काम करो जहाँ पे ट्रेडिंग होती है, आप इकट्ठा करो कैपिटल, और हम्म। फिर आप फुल टाइम करने के लिए आप कोशिश कर सकते हो छोटे कैपिटल के साथ, पर जी। आप अपना एग्जिस्टिंग जॉब नहीं छोड़ सकोगे, और आप इतना नहीं कमा सकोगे कि आप अपना और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सको। तो आपको इकट्ठा तो करना पड़ेगा, और आजकल इतना भी मुश्किल नहीं है। 50 60 70 लाख रुपए इकट्ठा करना लगते हैं, हम्म। 7 8 साल लगते हैं, पर बिजनेस शुरू करने में भी तो लगता है ना। बिजनेस भी कोई हम्म। कल आदमी 3 लाख रुपए के साथ आप ये तो नहीं सोच के चलता है कि मैं आज कल से बिजनेस शुरू कर दूंगा। तो आप ये क्यों सोचते हो कि ये ट्रेडिंग ऐसी चीज है कि बिजनेस नहीं कर सकता बट ट्रेडिंग मैं 3 लाख में कर लूंगा, तो बड़ी हम्म। ज्यादती हो जाती है। सही बात। तो क्या मैं पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर सकता हूँ ये 3 लाख से, और धीरे धीरे इस 3 लाख को मैं बढ़ाऊं, ताकि एक मेरा साइज बन जाए, तब मैं जॉब छोड़ के फिर ट्रेडिंग में फुल टाइम लग जाऊं? हाँ, कर सकते हो आप। 3 लाख को करो, उसमें आपके ज्यादा नहीं बनेंगे, कम ही बनेंगे, पर आप इकट्ठा करो इन द मीन टाइम, और हम्म। एक्सपीरियंस गेन करो, आपको आपको हम्म। थोड़ी समझ आएगी। अ, हम्म। तब तक शायद आपको, आपका कई लोगों का चस्का होता है, देखते हैं कि भाई वो ट्रेडिंग में, एक्चुअली हकीकत कुछ और है। जी। दिखता बहुत अच्छा है, हर कोई कोई नहीं बताता कि मैं अपना सारा फैमिली का पैसा हार चुका हूँ, और सब जी। दिखाते हैं कि हम तो बहुत ही सक्सेसफुल हैं। तो वो जी। ऐसी बात नहीं है। 90% ट्रेडर्स फेल ही होते हैं, जी। और वो हर बिजनेस में फेल होते हैं इतने लोग। इसमें दिखता नहीं है। बिजनेस में आप फेल हो गए तो दिखता है। आपका हम्म। बिजनेस अगर नहीं चल रहा तो हर एक को दिखता है। इसमें हम्म। नहीं दिखता, और कोई दिखाना भी नहीं चाहता। चलिए, मैं थोड़ा सा और टेक्निकल डिस्कशंस पे अब आता हूँ। आई थिंक फिलोसॉफिकली आप जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, वो आई होप माय यूजर्स हैव अंडरस्टूड कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग, जिसमें आपने अभी अपना कोर वर्किंग रखा है, और आई थिंक आप ऑप्शंस बाइंग साइड में ज्यादा है कि ऑप्शन सेलिंग साइड में, सर? बाइंग साइड बहुत कम करता हूँ, क्योंकि बाइंग साइड के लिए बहुत चीजें अलाइन होनी चाहिए। देखिए, एक हम्म। तो इंडिया में लॉन्ग टर्म ऑप्शंस की लिक्विडिटी नहीं है। नहीं है, तो करेक्ट। आप ये देखो कि आप 30 डेज, मतलब ऑप्शन लिक्विड ही जब एक नई एक्सपायरी शुरू होती है तब लिक्विड होते हैं। तो हाँ। 30 डेज में टाइम डिके बहुत ज्यादा होने लगती है। तो यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द टाइम डिके। तो हम्म। बहुत ही, मतलब अगर आपको ऐसा सेटअप मिले कि वॉलेटिलिटी बहुत कम हो गई है, और प्राइस एक बहुत ही नैरो बैंड में ट्रेड कर रही है, और वहां से कोई ब्रेकआउट होता है, तो वहां पे बाइंग चलेगी। पर ये ऐसे सेलिंग साइड में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, रोज मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है। ओके। बाइंग साइड में मुझे बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है। ओके। और ओके। बाइंग साइड में रिस्क भी बहुत है ना। मैंने आपको बताया कि आप बाय करते हो तो आपका 50-50 चांस है सक्सेस जी। का, जी। और अगर आप सेल करते हो तो आपका 80-90% चांस है। अच्छा। तो अच्छा। क्यों आप 50% पे जाओगे जब आपको 80-90% मिल सकता है। तो सब, बट सेलिंग तो, आई मीन इट्स अ रिलेटिवली रिस्कियर थिंग, चांसेस हाई है बट रिस्क भी बहुत हाई है ना इसमें। एक नॉर्मल इंसान, रिटेल इन्वेस्टर कैसे सेलिंग करेगा? देखिए, रिस्क कहाँ से आती है? रिस्क आती है तब जब आपका, दो चीजें हैं। एक, अगर आपका लॉस हो रहा है और आप लॉस को जल्दी नहीं काटेंगे तो आपका आपका रिस्क है। और दूसरा, ओके। अगर आपकी पोजीशन साइज बड़ी है तो फिर आपका रिस्क है। अब राइट। अगर आपने, जैसे आज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, टाइटन 1200 कितना है, I don't remember also, but it say 1380 something, it's quoting around 1380 today. ओके। So I find it's a range bound stock. So I have sold 4 lots per 1 crore. When I talk of figures, I talk per 1 crore. So I have sold the 1600 call, and I have sold the 1300 put, ओके। which is about ओके। me about 100 rupees, and I ओके। have generated 72,000 of premium. ओके। अब 4 लॉट से मेरा कितना घाटा हो जाएगा? और मैं देख रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। हाँ, अगर अगर हुआ है ऐसा, एक बार टाइटन में मैंने करा था, और वो कुछ न्यूज आई थी, और वो 3 स्टैंडर्ड डिविएशन की मूव हो गई थी, तो और वो 160 रुपए
अगले दिन डाउन खुला था, तो मेरा बहुत तगड़ा घाटा हुआ था। पर ऐसा बहुत कम होता है, 95% टाइम्स आपका फायदा होता है। आपको तकलीफ तब आती है जब आपकी पोजीशन साइज बहुत बड़ी हो। अगर आप पोजीशन साइज को ठीक रखोगे तो झेल जाओगे आप लॉस। तो मैं एक बार इसको और थोड़ा सा इसी एग्जांपल पे जा रहा हूँ कि आपने टाइटन स्टॉक क्यों आइडेंटिफाई किया, क्योंकि आप उसमें काफी टाइम से काम कर रहे हैं और उसका चाल आप देखिए, समझते हैं। मेरा क्या ट्रेडिंग स्टाइल है कि मैं ऑप्शनल स्टॉक्स जो हैं जिनमें लिक्विडिटी है और जो रेगुलरली ट्रेड होते हैं वो लगभग 25 या 30 स्टॉक हैं, इससे ज्यादा जी नहीं। जी। तो मैं वो 25-30 स्टॉक्स को देखता रहता हूँ, रोज देखता हूँ शाम को। और मैं उसमें देखता हूँ, अब जैसे टाइटन एक और तरीके से भी देख लीजिए, 1380 रुपए पे है और से उसका 1340 रुपए पे सपोर्ट है। तो मैं देखता हूँ कि जो 30 डेल्टा पुट है, से 1300 का पुट है, उसपे मुझे 20 रुपए मिल रहे हैं। तो डायरेक्शनली अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं खरीदूंगा नहीं, मैं 1300 का पुट बेचूंगा और 1340 का स्टॉप लॉस रखूंगा जहां सपोर्ट है। तो अच्छा अच्छा। मेरा व्यू पहले से ही होता है इन स्टॉक्स पे, क्योंकि मैं रोज ही देख रहा हूँ इनको, 25-30 स्टॉक को देख रहा हूँ। तो व्यू मेरा पहले से है। और जब मैं चार्ट को देखता हूँ तो मैं सिर्फ जो जो जिसको कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, वो आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। तो अगर मुझे अच्छा रिस्क, अब जैसे मैंने आपको बताया कि 1380 पे चल रहा है, 1340 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो 1340 का सपोर्ट देख के मैं देखता हूँ कि भाई इसमें कितनी सेफ्टी मुझे मिलके अच्छा अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो मैंने 1300 का अगर देखा कि 1300 पे मुझे 20 रुपए मिल रहे हैं, तो उससे 15,000 रुपए ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइटन में शायद 1.5 लाख रुपए का प्रीमियम है। तो 10% का रिटर्न है ना, पोटेंशियल रिटर्न है। मतलब रिटर्न तो तब होता है जब एक्सपायरी हो जाती है। तो वो करके मैं ऐसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स में आइडेंटिफाई करता हूँ और मुझे रोज बहुत सारे इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिल जाते हैं। तो मैं टाइटन में 4 या 5 लॉट से ज्यादा नहीं करूंगा। मैं अपना रिस्क जो है बहुत सारे स्टॉक्स पे बहुत सारे दिनों में, अगर मुझे टाइटन में 8 लॉट करने हैं तो मैं 8 लॉट भी एक दिन में नहीं करूंगा। मैं 2 लॉट आज करूंगा, 2 लॉट शायद 3 दिन बाद करूंगा। तो जितना आप डाइवर्सिफाई करेंगे, टाइम में डाइवर्सिफाई करिए, अंडरलाइंग में डाइवर्सिफाई करिए। अगर आप कर सकते हैं तो जो स्टॉक्स को आप पुट्स बेच रहे हैं और कॉल बेच रहे हैं उसमें कर सकते हैं, वो भी करिए। पर अनफॉर्चुनेटली कॉल साइड में आपको ज्यादा मजा नहीं आता, क्योंकि एक तो मार्केट नेचुरली आप ट्रेंडिंग होती है और दूसरा कॉल साइड में प्रीमियम बहुत कम होते हैं। तो कॉल साइड में कम अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। तो 90% जो ट्रेड होते हैं वो या साइडवेज वाले ट्रेड होते हैं या डायरेक्शनल लॉन्ग होते हैं। डायरेक्शनल लॉन्ग मेरा मतलब शॉर्टिंग अ पुट, नॉट गोइंग लॉन्ग। ओके, मिलते हैं ऐसे 5-10% ऐसे मिलते हैं जहाँ पे आपको बड़ा क्लियरली फ्लैग पैटर्न आइडेंटिफाई हो गया, जहाँ पे आप लॉन्ग जा सको। पर वो ऐसे अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलते हैं। मतलब आई थिंक महीने में 3-4 भी ऐसे ट्रेड हो गए तो बहुत ज्यादा हो जाता है। सो दैट मीन्स ये 20-25 स्टॉक जो आप रेगुलरली देख रहे हैं उनका ऑप्शंस में आपका एनी टाइम पोजीशन रहेगा, या ओनली जब आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है तब आप पोजीशन क्रिएट करते हैं? अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कहीं ना कहीं तो स्टॉक सपोर्ट फॉर्म करता है ना, सपोर्ट फॉर्म करता है या कुछ पैटर्न फॉर्म करता है। तो जहां वो पैटर्न उसने फॉर्म किया वहां पे मैंने 2 लॉट भेज दिए। अच्छा। तो ऐसे ऐसे करता हूँ मैं। मेरा व्यू, मैं ऐसा नहीं है कि मैं चार्ट से व्यू फॉर्म करूंगा। मेरा व्यू, मैं स्टॉक्स देख रहा हूँ तो मुझे पता है कि ये स्टॉक जो है ये अपवर्ड ट्रेंड में है, तो मुझे शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढने हैं। तो अगर मुझे मिल गया कोई पैटर्न या कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिल गया जिसके नीचे मैं कुछ कर सकता हूँ तो फिर मैं कर लेता हूँ। आपकी और बात मिलते रहते हैं मुझे दिन में बहुत सारे, मतलब जरूरत से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है जिसको मैं एक्सप्लॉइट भी नहीं कर पाता। इसलिए मैं निकल भी बहुत जल्दी जाता हूँ पोजीशन से, क्योंकि अगर पोजीशन ठीक नहीं चल रही या मेरे हिसाब से नहीं चल रही तो और इतने अपॉर्चुनिटीज हैं, तो क्यों अपना सर खपाओ ऐसी चीज में जो चल नहीं रहा। तो आप जल्दी निकलो और किसी और में घुसो। समझ गया मैं। मुझे आपसे बात करते हुए एक
एक जन की याद आ गई, उनका नाम है PR सुंदर, वो शायद आपके मित्र हाँ, भी है। तो बहुत अच्छे। उन्होंने कहा था अपने इंटरव्यू में कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर में लोग बोलते हैं कि रिस्क अनलिमिटेड है, और उन्होंने कहा था कि अनलिमिटेड रिस्क कैसे हो सकता है, आपके पास तो सामने स्क्रीन है, जब सौदा काटना हो तो काट लेना, इसमें अनलिमिटेड कैसे हुआ रिस्क? अनलिमिटेड रिस्क इसलिए होता है कि अनलिमिटेड का ये मतलब नहीं कि आप 10 करोड़ रुपए चले जाओगे। अनलिमिटेड का ये मतलब है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है झेलने की। जी तो अगर जी, आप 50 लाख रुपए पे बिल्कुल ही ठंडे पड़ जाओगे तो आपके लिए तो 50 लाख ही अनलिमिटेड रिस्क हो गया ना। सही तो बात है। मैंने सुंदर साहब के साथ ट्रेडिंग करी है, और उनकी कैपेसिटी बहुत है, जो हम लोग ऑर्डिनरी आदमी की कैपेसिटी नहीं होती। अब हम्म हम कई कई दिन हम बॉम्बे में बैठते थे, इकट्ठे ट्रेड करते थे, तो मैं उनका टर्मिनल देखता था एक्सपायरी के दिन में। तो वो एक हम्म एक मिनट में उनका MTM 5 लाख ऊपर 5 लाख नीचे ऐसा ऐसा दिखता था, जो हर एक की। हम्म और उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस जो है वो बहुत अच्छी है, मतलब वो हम्म, पैनिक नहीं करते, उनको समझ है। अब हो सकता है, मतलब मार्केट में कुछ भी हो सकता है। वो हुआ था ना उनके साथ, वो बैंक निफ्टी का जिस दिन वो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो वो मेरा ख्याल कितना 2000 या 3000 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे खुला था। तो नीचे की हम्म। पोजीशन सारी साफ हो गई, फिर आपने डिफेंड करने के लिए ऊपर का बेचा, फिर मार्केट रिकवर करके अपने ऊपर लेवल पे आ गया। तो मार्केट ऐसी चीजें करता है, पर वो झेल जाते हैं। तो हर एक के बस हम्म। की बात नहीं है ये झेलना। कई लोग तो बिल्कुल ही पड़ जाएंगे उसके बाद ऐसा लॉस देख के। तो ऐसा कुछ आपने फिल्टरिंग क्राइटेरिया कर रखा है क्या कि इतना विक्स के ऊपर में मैं नहीं करूंगा, या इतना विक्स के ऊपर होगा तभी मैं करूंगा, ऐसा कुछ? देखिए, फिल्टर मत कहिए। देखिए, ऑप्शन में अगर आपको, कई लोगों का कुछ समझ ही नहीं है ऑप्शन की, मतलब हम्म, आपको ऑप्शन के बेसिक तो समझने पड़ेंगे ना। जी। अ, जब आप ऑप्शन खरीदते हो या बेचते हो, तो आपको पूरा उसका जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि प्राइस अगर मूव करेगा तो ये ऑप्शन में क्या होगा। ये कोई, हम्म, इट्स इट इज नॉट अ सिंपल थिंग एज बाइंग अ स्टॉक और अ फ्यूचर और समथिंग। ऑप्शन हम्म, में आपको वॉलिटिलिटी भी देखनी पड़ती है, आपको डायरेक्ट डेल्टा भी देखना पड़ता है, आपको गामा इफेक्ट भी देखना पड़ता है। तो आप जब ऑप्शन ट्रेड करें तो पूरा समझ के ट्रेड करें। अब अगर अगर वॉलिटिलिटी बहुत कम है और आप ऑप्शन बेचोगे तो आप या तो बहुत श्योर हो, पर नॉर्मली ऐसा करना नहीं चाहिए। जो क्लासिकल वो हम्म, है, मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरा कोई ऐसा रूल नहीं है कि मैं कभी भी नहीं करूंगा, पर हम्म, 90% अगर वॉलिटिलिटी लो है तो मैं अननेचुरली लो है तो मैं नहीं बेचूंगा ऑप्शन उस स्टॉक ओके को। ओके, इतने सारे स्टॉक पड़े हैं, तो क्यों ऐसे स्टॉक को पकड़ो जिसमें वॉलिटिलिटी लो है, और मिल जाएंगे जिनमें ठीक है। जी जी। एंड डू यू ट्रेड ऑप्शंस निफ्टी, बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी तो बिल्कुल ही नहीं करता। हम्म, निफ्टी मैं करता हूं, पर मुझे शौक नहीं है निफ्टी करने का। मैं रेसिड्यूल जो ट्रेड है, अगर कुछ नहीं होता करने को तो मैं कर लेता हूँ। मुझे कंफर्ट नहीं है निफ्टी को ट्रेड करने में। मैं अच्छा स्टॉक ऑप्शन को प्रेफर करता हूँ। अच्छा, बैंक निफ्टी क्यों नहीं करते, एनी स्पेसिफिक रीजन? बैंक निफ्टी बहुत ही वॉलेटाइल है, मतलब कोई सेंस नहीं है उसमें। कुछ कुछ भी हो जाता है, मतलब 1000 1500 पॉइंट की मुझे सट्टा ज्यादा लगता है और ट्रेडिंग कम लगती है उसमें। सो आप वीकली ऑप्शंस के फैन नहीं है, इसका मतलब आपको? नहीं, मैं लॉन्ग टर्म ऑप्शन करता हूँ। मुझे टेंशन नहीं चाहिए। अब मैं 64 साल का हो गया हूँ, तो हाँ, मुझे थोड़ी कंफर्ट। और ऑप्शंस क्या, ऑप्शन को शॉर्ट टर्म ट्रेड करना तो अगेन गैम्बलिंग के बराबर है। अगर आपके हम्म, पास टाइम हो तो आपको आपको एडजस्टमेंट करने का भी बहुत टाइम मिल जाएगा, आपको निकलने में भी बहुत टाइम मिल जाएगा। अगर अगर आपके अगेंस्ट पोजीशन जाती है तो आपका लॉस भी कम होगा। अगर हम्म, आप वीकली कर रहे हो तो आपको आप यू आर स्टक विथ व्हाटएवर लॉस दैट यू हैव। और मेरी तो वैसे भी इतनी सारी पोजीशंस होती हैं कि मैं एक पोजीशन को नहीं संभाल सकता है ना। मेरा तो फर्स्ट रिएक्शन होता है कि इसमें रहूं, इज इट वर्थ एडजस्टिंग, कि मैं निकलूं इसमें से। तो 70% राइट, टाइम तो अगर वो मेरे अगेंस्ट जा रहा है तो मैं निकल के किसी और में घुस जाता हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एडजस्ट करूँ। जी। सो थर्सडे एक्सपायरी आप कुछ नहीं करते हैं, तो एक्सपायरी कुछ भी नहीं। स्पेसिफिक कोई स्ट्रेटजीज नहीं है? नहीं, ओके। एक्सपायरी स्पेसिफिक नहीं करता, करता हूँ। एक्सपायरी में काफी अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, क्योंकि हाँ हाँ अननेचुरल मूवमेंट्स होती हैं, स्टॉक्स में भी अननेचुरल मूवमेंट्स होती हैं। हाँ तो हाँ हाँ, आपको प्रीमियम्स भी हायर मिलते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा मिलती हैं। पर मैं एक्सपायरी रिलेटेड ट्रेडिंग नहीं करता। ओके, गॉट इट गॉट इट। एक्चुअली तो हुआ क्या था कि मैं
सुंदर साहब से जब पहले, सुंदर और जगन से जब पहले मिला था, तो एक ट्रेडर्स कार्निवल था, जी और जी जी जी। मैं वहाँ मैंने देखा कि ऐसे, मैं तो सोचा भी नहीं था कि एक्सपायरी ट्रेडिंग लोग करते हैं, तो बड़ा बड़ा अच्छा लगा कि हाँ। ऐसा भी होता है कि हर थर्सडे को 5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए बन गए। तो हम्म मैंने आके शुरू करा, और वो जिस दिन शुरू करा वो दिन था जब HDFC का, वो इंस्टीट्यूशन का, वो अनाउंस हुआ। तो मैं आई थिंक 3 बजे तक 5 लाख रुपए अप था, और वो अनाउंसमेंट आई, और सडनली, और नॉर्मली आपका जो रिस्क होता है वो डाउन साइड पे होता है। आप हम्म सोच भी नहीं सकते कि लास्ट हाफ एन आवर में 1000 पॉइंट ऊपर चली जाएगी। तो वो हम्म। ऐसे ही हुआ, और 3 बजे का जो 5 लाख रुपए का लॉस था, उसके बाद जो बढ़नी शुरू हुई, और करा नहीं था ऐसा काम, तो वो निफ्टी में भी, वो NSE में भी कोई लिमिट्स है कि आप एक ऑर्डर भी डालो तो एक ही इतने ही फिक्स क्वांटिटी है। और मेरे तो हाँ। मेरे 8-9 अकाउंट है जो मैं इकट्ठे ट्रेड करता हूँ। अच्छा। तो निकलते निकलते बाय द टाइम आई गॉट आउट ऑफ इट, मेरा 20-25 लाख रुपए का लॉस हो चुका था। अरे तो बाप उसके बाद मैंने कान पकड़ लिए कि मैं ये काम नहीं करूंगा। रे। तो सर आप जो स्टॉक्स के अंदर में काम करते हैं, तो बिकॉज आप वो 20-25 पे फोकस कर रहे हैं, तो डू यू थिंक ये स्ट्रैटेजी एक नॉर्मल इंडिविजुअल ट्रेडर को भी अडॉप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें फोकस ज्यादा है? अरे, एवरी ट्रेडर इज डिफरेंट। अब हर एक का अलग अलग, मेरे तो और भी स्ट्रेटेजीज है ना। मेरा पोर्टफोलियो भी है, तो मैं कई बार अराउंड द पोर्टफोलियो भी ट्रेड करता हूँ। अगर मेरे पास अच्छा। स्टॉक्स हैं, मैंने हम्म स्टॉक खरीद लिया, उसके अगेंस्ट मैंने स्ट्रेडल्स बेच लिए, तो मेरी अपसाइड प्रोटेक्टेड है। या मुझे हम्म अगर स्टॉक लेना है, तो मैंने उसका एट द मनी पुट बेच दिया। तो हम्म। अराउंड द स्टॉक्स ऑल्सो मैं बहुत ट्रेडिंग करता हूँ। तो डिपेंड करता है कि किसी को, कोई लोग कंफर्टेबल नहीं होता। आजकल वो अनलिमिटेड रिस्क का बड़ा चस्का डर लगता है लोगों को, है ना। लोगों को रात को नींद नहीं आती। तो अगर आपको, एक्चुअली निफ्टी में भी ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि निफ्टी में अब निफ्टी में फ्राइडे को 500 पॉइंट डाउन हुआ ना, तो निफ्टी में भी बहुत बड़ी मूव्स आती हैं। बट स्टॉक्स में लोगों को समाव बड़ा डर लगता है। मेरे हम्म। ट्विटर में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि जी, अगर अगर ब्लैक स्वॉन इवेंट हो गया तो आप क्या करोगे। अब ब्लैक स्वॉन इवेंट में यही कर सकते हो कि आप एक तो पोजीशन साइज कम करो, ज्यादा मत रखो, हम्म और आप लॉस अगर हो रहा है तो आप बच के रहो, मतलब जितनी जल्दी निकल सकते हो निकल लो, वेट मत करो कि शायद ये वापस आ जाए। हम्म। सो आपके अभी तक मार्केट के जो इलस्ट्रियस करियर है, इसमें एक कोई भी एक साल को अगर बेस पकड़े डिस्कशन के लिए, तो कितने महीने ऐसे रहे होंगे कि आप नेट में लॉस में रहे होंगे, या हर महीने आप प्लस में ही रहे? देखिए, मैंने जब शुरू करी थी तो 2017 तक तो मेरा ख्याल 4 साल तो मेरा एक भी महीने में लॉस नहीं हुआ। अच्छा। और वो, ओके। वो बहुत अच्छा टाइम था, क्योंकि उसमें उस वक्त में वॉलेटिलिटी, मीडियम वॉलेटिलिटी थी। कोई ऐसे 2017 में शायद एक एक या 2 महीने में लॉस हुआ। लास्ट ईयर में मेरे 3 महीने में लॉस हुआ, और काफी बड़ा लॉस हम्म। हुआ। मतलब ऑल्दो ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहा, बट हम्म वो भी आपको हिला हिला के रख देता है। एक एक महीना तो मेरी पोजीशन साइज बहुत बड़ी हो गई थी टाइटन में, जैसे मैंने आपको बताया। तो मेरा हम्म। उसमें काफी बड़ा लॉस हुआ। एक वो निर्मला सीतारमन का जो वो था, हाँ उसमें लॉस हुआ। और एक मेरा मार्च में काफी लॉस हुआ, जब वो कोविड की वजह से हाँ। वो मार्केट्स डाउन हुई। तो ठीक है, ऐसे भी साल आते हैं। पर तो नॉर्मली साइकोलॉजी। नॉर्मली लोग ड्रॉ डाउन की बात करते हैं। मेरे मेरे साथ ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैं कहूँ कि जी मेरा एक साल में इतना ड्रॉ डाउन हो ओके। गया। मेरे एक बार लास्ट ईयर दो दो कॉन्टिन्यूअस मंथ्स में मेरा लॉस हुआ था। नहीं तो ऐसा भी नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस लॉसेस। मेरा आई थिंक इन द लास्ट 7 और 8 ईयर मेरे 8 8 महीने में, 7 8 महीने में, एक महीना ऑन एन एवरेज आप लेके चल लो, लॉस हो जाता ओके। सो साइकोलॉजिकली हाउ डू यू डील दोज डेज, दोज मंथ्स की जहां आपके लॉस हुए हो, तो नेक्स्ट मंथ जब चालू होता है तो उस समय क्या माइंडसेट लेके बैठते हैं? है। लॉस होना बड़ा मुश्किल है। सी आप, जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल। मैंने लास्ट मंथ में UBL का 1200 का पुट बेचा। हम्म। वो गिरते
एक्चुअली आई शुड हैव गॉट आउट ऑफ इट। वो 1280 पे था जब बेचा, तो निकल जाना चाहिए था, नहीं निकला, क्योंकि सोचा था कि यूबीएल खरीद लेंगे, तो अच्छा स्टॉक है। तो वो गिरते 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 1100 रुपए पे आ गया। एक्सपायरी हाँ। में 1100 है, तो कुछ तो मैंने खरीद लिया, पर मेरी क्वांटिटी कुछ ज्यादा थी, तो मैंने उसको अगले महीने में रोल ओवर कर दिया। अच्छा। तो मैंने 1100 का जो उस महीने का लॉस था, मैंने वो 1100 अगले महीने में रोल ओवर कर दिया, तो उसमें उतने ही लगभग उतने ही पैसे मिल गए। मैंने वो 100 रुपए का लॉस था, 80 रुपए मिल गए, और उसके अगेन मैंने 1240 का कॉल बेच दिया एक, तो मेरा लॉस बराबर हो गया। अब इस अच्छा। महीने में वो आ गया वापस 1220 1230 में। तो ऐसा बड़ा मुश्किल होता है कि मार्केट होता है, पर मार्केट कॉन्टिन्यूसली एक अच्छा, अगर आपके स्टॉक्स अच्छे हैं तो डाउन जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी, ऐसा नहीं होता, वो कभी ना कभी रिकवर कर जाती है। तो अगर आपकी पोजीशन साइज ठीक हो और आप रोल ओवर भी कर लो, या आप उसको स्टॉक को खरीद के फिर उसके अगेंस्ट कुछ स्ट्रेटेजी कर लो, तो वो मेकअप हो जाता है। आपने कहा कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि आप डिलीवरी ले लेंगे, ये कितना बड़ा कंफर्ट है किसी भी ट्रेडर के लिए। वो कंफर्ट तब है जब ऐसा स्टॉक हो जो आप कंफर्टेबल हो होल्ड करने के लिए। अब जैसे बजाज फाइनेंस है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है होल्ड करने में, या यूबीएल जैसा स्टॉक अगर करंट लेवल से बहुत नीचे आ जाए, मतलब ऐसे 6-7 स्टॉक है, एचडीएफसी लाइफ है, तो मैं इनमें लेता रहता हूँ। पर सिचुएशन चेंज होती है। मैं आपको बताऊं, मार्च में मैं मुथूट में बड़ा कंफर्टेबल था, मैंने बहुत अच्छा। पैसे बनाए लास्ट ईयर मुथूट में। अब मार्च में मेरा 1100 का 1100 का पुट बेचा हुआ था मैंने, और स्टॉक 1300 पे चल रहा था, हम्म। हम्म। और वो गिरते 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 850 रुपए पे आ गया। ढाई 250 रुपए पर लॉट का लॉस था, और मेरे पास कोई 15 लॉट्स या 20 लॉट्स थे, अलग उससे भी ज्यादा थे, अलग अलग अकाउंट्स। और उस वक्त वो कोविड का भी, तो मार्केट हर बार आपको कोई नया रंग दिखाती है। अब अभी आप सोचते हो कि जी मैं तो अ, सारा सीख चुका हूँ, तो लोग कहते हैं ना कि आप अच्छे स्टॉक्स में होल्ड करो, और जो डाउन पीरियड्स होते हैं तो आप कन्विक्शन रखो कि आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स को होल्ड करोगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ही आपको डाउन मंथ्स में आती है। पर हर बार जब ये ऐसा होता है, तो कुछ ऐसी चीज होती है जिसमें होल्ड करना मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी कोविड का आया, तो मेरे पास बड़े अच्छे स्टॉक थे, हम्म। एचडीएफसी बैंक था, कोटक बैंक था, मुथूट के कुछ थे। अब उस वक्त क्या था कि कोविड आ गया, तो मेरी डॉटर तो बाहर अमेरिका में पढ़ रही है, मेरी वाइफ को मार्केट की कोई समझ नहीं है, हम्म। बिजनेस का कोई भरोसा नहीं है कि कब बंद हो गया कब खुलेगा, रेंटल इनकम जो थी टेनेंट्स ने नोटिस दे दिए। अब आपको ये भी था कि बॉम्बे में राइट्स हो जाएंगे या क्या नहीं होगा, तो आपने कहा जी मुझे तो लिक्विडिटी चाहिए। तो मैंने मेरा ख्याल 5-6 करोड़ रुपए के स्टॉक्स कैश करे, 1 करोड़ रुपए का लॉस लिया इन गुड और स्टॉक्स। और वो स्टॉक्स अगर मैं होल्ड करता, तो आज वही 1 करोड़ का जो लॉस था, वो 1 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता। तो हम्म। मार्केट हर बार आपको कुछ नया दिखाती है। आप ये सोच के जो चलो कि जी ये तो प्रूवन एंड टेस्टेड मेथड है, तो इसको हम करके अगले बार वो कर लेंगे, तो ऐसा होता नहीं। तो एक बात बताइए, अगर कोई ऑप्शन में ट्रेड कर रहा है तो उसको कितना पैसा, अ, कितना परसेंटेज ऑफ कैपिटल कैश में रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब रिक्वायरमेंट आ जाए। देखिए, मेरा तो कभी भी 50 मेरा रेयर है कि मेरा 50% कैपिटल भी यूटिलाइज हो जाए, क्योंकि अगेन अगर आप पोजीशन साइज को ठीक रखेंगे, और आप रिस्क कैलकुलेट करो, कि मैं हर एक पोजीशन पे अपना रिस्क कैलकुलेट करता हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा जो रिस्क कैलकुलेशन, अब ठीक है, मेरा कैलकुलेशन भी गलत हो सकता है, क्योंकि जैसे आपने कहा थियोरेटिकली तो मेरी अनलिमिटेड रिस्क है ना, एक्चुअली हम्म। होती नहीं है वो, कभी प्रैक्टिस में कभी हुई भी नहीं है। बट मैं हम्म। कैलकुलेट करता हूँ कि मेरा इतना लॉस हो सकता है, तो मैं 12 से 14% बहुत रेयरली, इससे ज्यादा रिस्क लेके नहीं चलता। तो अगर मैं इतना रिस्क लूँ, तो मेरा 50% कैपिटल भी यूटिलाइज नहीं होता। तो मुझे ये इसका कोई फर्क, ये जो ऑब्सेशन है कि मुझे अपना लास्ट पेनी तक मार्जिन यूटिलाइज करना है, ऐसा मुझे कभी नहीं, अ, मुझे तो कभी ऐसी तकलीफ नहीं है। ओके सर, ये 12-13% जो आपने कहा, ये कैसे कैलकुलेट किया आपने। देखिए, हर एक स्ट्रेटेजी का अलग रिस्क होता है। अब जैसे अगर हम्म। मैं जनरली मैं लेता हूँ 1.5 to 2 times ऑफ द प्रीमियम दैट आई कलेक्टेड। अच्छा। जैसे ओके। अब जैसे मैंने ये आपको बताया, मैंने 24 रुपए का टाइटन का स्ट्रेंगल बेचा, तो उस पे मुझे कितना मिला,
18,000 रुपए मिल गया, तो मैं इस पे 36,000 रुपए का रिस्क लेके चलूंगा। मतलब तो 36,000 अगर लॉस होगा तो आप काट लेंगे सौदा? नहीं 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 नहीं, मैं तो बहुत पहले काट दूंगा। मैं रिस्क कैलकुलेट करके चलता हूँ कि मेरा इस पे अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो तो 36,000 तक का लॉस हो ओ, सकता है। अच्छा 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 एक्चुअली तो अच्छा। मैं लॉस ही नहीं होने दूंगा। मैं 99% में अगर ब्रेक इवन से भी पहले, मतलब छोटे प्रॉफिट से भी निकल जाऊंगा। अब सी, अगर आपने ऑप्शन बेचा है तो एवरीडे आपकी टाइम डिके हो रही है। जी। तो मैंने अगर आज 1380 रुपए है और मैंने उसको बेचा, और 6 दिन बाद वो 1340 रुपए पे आ गया, तो हम्म चांसेस आर कि मेरा कोई लॉस नहीं है। ऑल्दो हम्म। 40 रुपए से नीचे आ गया, उतना टाइम डिके ने कवर अप कर दिया। हाँ तो हाँ मैं, हाँ। पर एनीवे मैं तो, अगर मेरा स्टॉप लॉस 1340 पे है तो जो भी उसकी प्राइस होगी उस वक्त, विच विल नेवर बी, मतलब 1.5 टाइम्स तो बहुत ही कुछ अनहोनी हो जाए तो इतना लॉस हो जाता है। नॉर्मली लॉस नहीं होता है। हम्म। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर मेरे को एक नंबर आपसे लेना हो कि कितने स्टॉक्स में आपका पोजीशन रहता होगा? मेरा मेरे मेरे स्टॉक की बात छोड़िए, मेरे रफली एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 70-80 पोजीशन रहते हैं। माय गॉड, मतलब 70-80 स्ट्राइक्स में? 70-80, यस। ओ माय गॉड, ये इतना मैनेज कैसे करते हैं? मतलब इतना पोजीशन अगर वो लाइव आदत रहे। पड़ जाती है। 70-80 into about 8 accounts, so I have about 600 positions ओ that माय I have to manage. गॉड। बट यू गेट यूज, मतलब जैसे आप वेट लिफ्टिंग में धीरे 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 आपका वो हो जाता है, तो इसमें भी आप, यू हैव टू देन, वो आपको अवेयर होना पड़ता है कि देखो मेरी ये पोजीशंस हैं। आप वो स्टॉक्स को देख रहे हो तो आपको आइडिया होना चाहिए कि मेरी यहाँ 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 पोजीशन है और यहाँ से मुझे निकलना है, या यहाँ पे मेरा वो कुछ हो रहा है। तो वो मेंटली पहले लिख के रखनी पड़ती थी, अब मेंटली देख के पता चल जाती है कि ये है। राइट। अच्छा, फ्यूचर्स यूज करते हैं? वेरी रेयरली, एडजस्ट करने में अगर यूज कर लिया तो कर लिया, नहीं तो मैं नहीं करता फ्यूचर। और ऑप्शंस के अंदर में डेल्टा हेजिंग, वेगा हेजिंग, ये सब कुछ भी? करता हूँ बट ओनली इन स्टॉक्स वेयर आई हैव अ सब्सटेंशियल स्टेक। जैसे मैंने आपको बताया, अब जैसे मैं एचडीएफसी लाइफ है, हम्म। मेरी एचडीएफसी लाइफ में पोर्टफोलियो में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है। अच्छा। मैं उसको, एक्चुअली आई एम नॉट अ प्योर ट्रेडर, आइडिया मार्केट में पैसा बनाने का है, आइडिया ट्रेडिंग का हाँ नहीं है। हाँ, तो सही मैंने बात। क्या करा, मैंने एचडीएफसी लाइफ को मैंने 550 या 500, मार्च में 550 रुपए पे पहुंच गया था, तो मैंने 550 रुपए से लेना शुरू किया। हाँ। और मैं उसके अगेंस्ट मैं क्या करता हूँ, मैं स्ट्रेडल बेच देता हूँ। तो मुझे 55-60 रुपए मिल जाते हैं स्ट्रेडल में, और फिर उसको मैनेज कर देता हूँ। उसको मैं मैनेज करूंगा तो वो अगर, मेरा अटेम्प्ट है कि जो 60 रुपए स्ट्रेडल में मुझे मिले तो उसमें से 25 रुपए मुझे बच जाए, तो मेरा जो पोर्टफोलियो है मैं 25 रुपए या 26,000 रुपए पर लॉट एचडीएफसी लाइफ में मेरा बनता रहे। तो ऐसे मेरे 4-5-6 स्टॉक्स हैं। एचडीएफसी लाइफ है, टाटा कंज्यूमर है, मुथूट फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है। बजाज फाइनेंस में तो मैंने 3500 से शुरू करा था, तो डिफेंड भी नहीं कर सका मैं। 3 बार I had to give delivery. I bought the stock, I sold a straddle, it went up so fast that, but ठीक है, मेरे 600 रुपए बन गए उसमें, तो मैंने दे दी डिलीवरी। फिर अगले महीने ये मैंने फिर कौन- शुरू किया, फिर वो बढ़ गया। अभी दिस मंथ अगेन वो 5500 रुपीज पे पहुंचा, तो मैंने 5500 पे आई हैड टू गिव डिलीवरी, बट आई मेड a lot of money this year on Bajaj Finance after giving delivery. But see, that is the comfort that you have if you are holding the stock and you sell a straddle. बजाज फाइनेंस पे 500 रुपए का स्ट्रेडल है, तो हम्म। 500 रुपए से ऊपर, अब हर महीने 500 रुपए से ऊपर चढ़ रहा है, पर अपसाइड आपकी प्रोटेक्टेड है ना। आपको पता हम्म है कि आप 250 रुपए तो डिफेंड कर लोगे। तो हम्म। 700 रुपए अगर ऊपर पहुंच गया और फिर भी आप नहीं डिफेंड कर पाए, 700 रुपए के प्रॉफिट पे अगर आपको डिलीवरी देनी पड़ती तो कौन सा बुरा है वो। तो एक बार इस कॉन्सेप्ट को वापस से डिस्कशन करते हैं। जनरली क्या होता है कि कोई डिलीवरी लेता है तो लोग बोलते हैं ऊपर का कॉल ऑप्शन बेच दो, तो आपका वो हेज हो गया। तो वो स्ट्रेडल मतलब वो हेज एट द नहीं है, वो पॉइंट ऑफ। इनकम जनरेटिंग स्ट्रेटेजी है। उस पर आपको कुछ मिलता नहीं ना। आपने बजाज हाँ फाइनेंस 5300 का खरीदा और उसके हाँ अगेंस्ट आपने 5300 का कॉल बेच दिया, तो आपको 125 मिल गए या 150, हाँ 200 रुपए मिल गए। और हाँ। वो 5500 पे पहुंच गया तो आपको 200 रुपए का टोटल, आप 200 रुपए बना के निकल गए। करेक्ट। तो मैं, मुझे अगर स्टॉक अच्छा लगता है और मैं पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहा हूँ, तो मैं 5300 का लूंगा और मैं 5300 का
स्ट्रैडल बेच दूंगा 500 रुपए में, और तो उसमें मैं स्ट्रेडल, डेल्टा है। हाँ, तो स्ट्रैडल में अच्छा मुझे 500 रुपए मिल जाएंगे, अच्छा और मैं उसको मैं डिफेंड करूंगा, उसपे मैं पे ऑफ चार्ट भी देखूंगा। दो वो ट्रेड्स वो हैं जो मैं एक्टिवली मॉनिटर करता हूँ। जो नॉर्मल ये जो छोटी छोटी ट्रेड है, जैसे टाइटन का मैंने स्ट्रैंगल बेचा, उसपे मैं अगर मुझे दिखा दिखा नहीं चल रहा तो मैं निकल जाऊंगा, इट्स नॉट वर्थ डिफेंडिंग। ये जो ट्रेड्स हैं इस पे मुझे डिफेंडिंग, अब जैसे मैंने इस महीने 4 सॉफ्टवेयर के स्टॉक्स लिए, तो 35 लाख हाँ रुपए पर करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी, हाँ और उसके अगेंस्ट 6 लाख रुपए के स्ट्रेडल्स बेच दी। तो मेरा हम्म। आइडिया है कि वो स्टॉक भी अप्रिशिएट करें और मुझे 2 लाख रुपए हर महीने उसमें प्रॉफिट भी बनता चला जाए, तो उसमें मैं डिफेंड कर रहा हूँ। तो ऐसे अब धीरे धीरे उसमें भी, पहले इतनी कैपेसिटी नहीं थी उसमें भी, पहले 3 स्टॉक्स थे, अब मैंने 6 पे बढ़ा दिया, अब मैं इवेंचुअली 7-8 मे बी। अब ये मार्केट का दौर है, क्योंकि ये अब ट्रेंडिंग मार्केट है, इसमें ये स्ट्रेटेजी चल रही है। कल हम्म को अगर मार्केट चेंज हो जाए तो ये नहीं चलेगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं इतना कमिटेड हूँ कि मैं बेवकूफों की तरह वही स्ट्रेटेजी लगाता रहूंगा कि जी मैं तो बैक टेस्ट करी हुई है पिछले 6 सालों में, और ये चली 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 जा रही है, तो मैं तो इसी को चलाऊंगा जो भी हो जाए। और ये मार्केट ऐसी भी है, मैं जैसे एचडीएफसी लाइफ है तो मैं एट द मनी पुट भी भेज देता हूँ। अच्छा अब जैसे तो 620 रुपए का, 720 रुपए का मैंने 720 का पुट बेचा, मुझे 30 रुपए मिल गए। हाँ अगले अब 30 रुपए में से जितने अगर बढ़ गया तो बहुत अच्छी बात है, तो अगले सपोजिंग 750 हो गया, तो मुझे तो 30 रुपए बच गए। अगले महीने में 750 का पुट बेच दूँ, अगेन एट द मनी पुट बेचू। अब उस 690 के नीचे अगर आया, हम्म हम्म। लॉस हो गया, तो मैं 720 का ही पुट बेचूंगा। मैं अच्छा 690 का पुट नहीं बेचूंगा, मैं 720 का ही पुट बेचूंगा। कभी ना कभी तो वो स्टॉक 720 पे वापस आएगा ना। ऐसे हम्म। मतलब अगर आपका इतना कॉन्फिडेंस है स्टॉक पे, तो ये स्ट्रेटेजी भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे बहुत कम स्टॉक है वैसे, बट हैं हम्म। ऐसे स्टॉक। तो ये कुछ इस मार्केट के लिए ये स्ट्रेटेजीज हैं, हर मार्केट में नहीं चलेंगे। जी, तो अब ये अगेन वही बात होगी सर कि आपको ये स्टॉक्स में कॉन्फिडेंस है तो आप इसीलिए पुट बेच दे रहे हैं कि नीचे जाएगा तो आप डिलीवरी ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट वो तो तेजी का बाजार का था ये थ्योरी। अभी अगर सपोज स्टॉक यहाँ से 20% गिर जाते हैं और उस समय एक्चुअली में हमारे मार्क टू मार्केट लॉस दिखते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव अकाउंट में जो मार्क टू मार्केट लॉस है ना, वो बहुत ही लाउड तो दिखता है। मैं रोल ओवर करने को भी तैयार हूँ ना। रोल ओवर में अच्छा अगर 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 आपका 10% तक अगर आप गिरता है, तो आप रोल ओवर में बराबर कर सकते हो। अब सही है। अगर हर महीने 3 महीने कॉन्टिन्यूसली गिरता रहे तब आपको तकलीफ है, पर अगर एक महीने के लिए गिरा 10%, तो आप उसको उसको कवर कर सकते हो। हुआ है मेरे मेरे लास्ट मंथ दो स्टॉक्स में हुआ है। एक तो मैंने आपको यूबीएल का बताया। जी। अब एक स्टॉक है लाल पैथलैब, वो इतना ट्रेडेड भी नहीं है। उसमें हाँ ऑप्शन हाँ वो बहुत बढ़िया था, तो मैंने 2500 का पुट बेच दिया था, वो 2600 पे स्टॉक चल रहा था, हाँ वो जाके हाँ 2300 पे खत्म हुआ। हाँ तो मैंने 2500 को 2400 पे रोल ओवर कर दिया, तो उतने मार्जिन पे। और मैंने हाँ ऊपर में 2700 का कॉल भेज दिया, तो वो पैसे मेरे वापस आ गए। अब मेरे पास वो 2 पोजीशन अगले महीने में पड़ी हुई हैं, अब मैं उनको मैनेज करूंगा। अब कुछ मैंने हम्म, डिलीवरी ले लिए। तो वो आपको फिर प्लान करना पड़ता है कि आपको आपकी कैपिटल कितना है, आपका कितना आपको, मतलब ऐसा तो नहीं है कि अगर मेरे 8,000 साइन हो गए तो मैं 8 के 8,000 ले लूंगा। तो ये भी हम्म, आइडिया होना चाहिए कि कितने आप अगर अगर नीचे आए तो कितना आप लेके रखोगे। ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा प्राण, आप यूएस मार्केट में भी काम किए हुए हैं और इंडियन मार्केट में अभी काम कर रहे हैं, तो आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? यहाँ पर पैसा बनाना क्या रिलेटिवली इजियर है? मच इजी। यूएस मार्केट में ट्रेड करना बहुत टफ है। हम्म स्टेबल मार्केट है, बट बहुत मजा भी आता है ट्रेड करने में, बहुत ज्यादा, मतलब उसमें लॉन्गर टर्म का ट्रेडिंग है, वो आप कर हम्म सकते हो जो यहाँ पे आप नहीं कर सकते। अब जैसे हम्म एसएमपी है, एसएमपी में जो इनके एक जो ऑप्शन डेस्क है, उसमें जो ट्रेनिंग देते हैं, उसमें कई पार्ट टाइम लोग भी ट्रेड कर। इंडियन मार्केट्स आई डोंट थिंक अगर आपको करना है आप पार्ट टाइम नहीं ट्रेड कर सकते, क्योंकि हम्म टाइम नहीं है आपके पास। 30 डेज में आपके पैसे नहीं बन, मतलब आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप अगर हम्म 45 डेज 50 डेज ऐसे उनकी स्ट्रेटेजीज लगाओगे, तो उसमें ऐसे भी कई स्ट्रेटेजीज हैं, जैसे आपने ही लिखा था। तो उनके पास डेंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, हम्म इंजीनियर्स भी हैं, जो ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जो आप दिन में सुबह और शाम कोई देख लो और एक बार एडजस्टमेंट कर लो और उसमें आपका पूरा हो जाता है।
वो लॉन्गर टर्म ऑप्शन में आप कर सकते हो, और इंडिया में आप नहीं कर सकते, इंडिया में बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर इंडेक्स के अंदर में लीप कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, 24 महीने के, 36 महीने उसमें के। लिक्विडिटी नहीं है, आप उसमें स्प्रेड देखिए कितना, 20 स्प्रेड 20 तो 30 काफी। 30 रुपए में, तो फिर मजा नहीं है ना उसमें कुछ। सही बात। सो कैश मार्केट के अंदर में जो आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो भी क्या आपका ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अराउंड में है, कि उसके अलावा भी यू डू इन्वेस्ट इन कैश मार्केट और I सेपरेट invest. I am generating a lot of capital every month. I need to invest. So I invest in mid cap stocks हैं, तो उसमें भी जो ऑप्शनेबल नहीं है हाँ उसमें भी हाँ करा हाँ हुआ है। इनफैक्ट मैंने पैसे पीएमएस, कुछ जो मेरे अच्छे पीएमएस मैनेजर हैं, जो मेरे अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, हाँ उनके हाँ। साथ भी करा हुआ है। तो मुझे जहाँ अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं इन्वेस्ट करने को तैयार होता बहुत सही। सो प्राण, ऑप्शंस के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट का इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक मेरे यूजर्स को कम से कम एक बार ये वीडियो और देखना चाहिए, क्योंकि आप अपने लैंग्वेज में बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिए हैं, बट जो नॉर्मल इंसान है उसको ये कॉम्प्रिहेंड करने में हो सकता है एक बार और ये वीडियो देखना पड़ेगा। बट इट वाज फिनोमिनल कॉन्वर्जेशन विथ यू, मजा आया। हूँ। There's one more area that I'd like to touch on, and that यस। is training. That is training. अच्छा। यू नो, लोग सोचते हैं कि हम सेमिनार अटेंड कर लेंगे या किसी और का मेथड देख लेंगे। मैंने एक सेमिनार करा था, उसके बाद मैंने बंद कर दिया सेमिनार करने, क्योंकि क्या सिखा सकते हो आप सेमिनार में? बेसिक स्ट्रेटेजी, आप स्ट्रैंगल है या स्ट्रेडल है, उसको कैसे ट्रेड करते हैं, उसको कैसे एडजस्ट करना है, ये तो कोई भी, मतलब इसके यूट्यूब के हजारों वीडियोस हैं, तो आप सीख लो। या अब, और पर्सनलाइज स्ट्रेटेजीज होते हैं हर एक ट्रेडर के। जो अच्छा ट्रेडर है उसने अपने अपने, मतलब आप देखो किसी ट्रेडर ने वॉलेटिलिटी के ऊपर या एडीएक्स के ऊपर या 5 इंडिकेटर को कंबाइन करके कोई स्ट्रेटेजी बनाई है। एक्चुअली मैं तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता हूँ, मैं और कुछ अच्छा। देखता नहीं। तो आप अगर सोचो कि आप किसी और की स्ट्रेटेजी पे पैसा बना लोगे, तो ये होने वाला नहीं है। आपको अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप करनी पड़ेगी, और वो आपको मार्केट में रह के ही डेवलप करनी पड़ेगी, ये ऐसा नहीं होगा। और जो सबसे वर्स्ट लोग होते हैं, जो लॉस करते हैं मार्केट में, वो ये लोग हैं जो स्ट्रेटेजी तो क्या, उनको डेली टिप्स चाहिए, वो कि जी उसने खरीद लिया तो मैं भी यही करूंगा। तो ये देख के मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ऐसे भी लोग हैं जिनको इतनी भी समझ नहीं है कि, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, अपना कोई मेथोडोलॉजी बनाओ जो आपको अच्छी लगे। कोई कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल स्ट्रेटेजीज भी चलती हैं, पर आप समझो कि उसमें क्या हो सकता है और मैं क्या करूंगा। ये अगर आप सोच के करोगे तो, और रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई करोगे, तो वो तो किसी, डॉक्टर वैन साहब ने प्रूव कर दिया था कि आप अगर कॉइन टॉस पे भी ट्रेड कर रहे हो without anything else on the chart also, and if your money management and risk management is okay, you still end up with a positive result. तो ये जो तरीका है कि हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे और किसी और की स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, ये ख्याल लोगों को दिल से निकाल देना चाहिए। और वो लोग कहते हैं, द अदर बज़वर्ड इज पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी जी, पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी, एक ये स्टेटिस्टिक्स का भी एक भ्रम है। पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी ओवर हाउ मेनी ट्रेड्स? if I have a system that is giving me 60% positive trades, 60 out of 100 positive trades, it doesn't mean that that same system cannot give me 80 losses in the next 100 trades. To say that I'm going to follow this system regardless of what, you can be right in the long run, but you can be bankrupt much before you are right. So if that is of any comfort to you, so you have to adapt to the market. You have to have your own system which you have developed yourself and which you think works for you. And you don't need complex systems. Don't look at the Twitter traders and see कि इनके इतना sophisticated system है, तो हमें भी इतना sophisticated system है। SMB में आप जाओ तो जो टॉप ट्रेडर जो millions of dollars बना रहे हैं, वो सिर्फ सुबह उनकी मीटिंग होती है, वो 10-15 स्टॉक्स जिनमें वो स्टॉक्स ऑफ द डे आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें वो लेवल्स आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर उसके अराउंड वो ट्रेड करते हैं। वो हर एक 10 लोग सेम, 100 लोग हैं, सब लोग अलग उसी लेवल्स के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं, और किसी ने $1 million प्लस हो गया और किसी के $200,000 नेगेटिव हो गया। तो वो जो
स्किल है उसको आप डेवलप करो। वो जो लेवल्स और क्या वो है उसको आप, वो स्किल नहीं है, वो कोई नॉलेज नहीं है। लोग कहते हैं जी नॉलेज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, ये नॉलेज नहीं है। नो ट्रू। वो तो देखिए क्या हो रहा है अभी इंडिया के अंदर में ना, एक आई वुड से इन्फ्लक्स पॉइंट आया है जहाँ पे सडनली वानाबी ट्रेडर्स बहुत आए हैं सिस्टम में। सो लोग छटपटा रहे हैं, उनको लग रहा है कि कहीं से कुछ भी वो एक मिल जाए बस फॉर्मूला, ताकि हम लोग सब कोई पैसे छापना चालू कर दे। तो कुछ लोग ओवरबोर्ड जा रहे हैं उसमें। एक वो है, और दूसरा ये है कि लोग सोचते हैं कि जब तक कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, जब तक हमने कुछ बहुत ही अजब सा नहीं निकाला, तब तक पैसा बनाना। वो था ना, वो हाँ हमारा हसमुख आडिया था, उसने कह दिया कि कैपिटल गेन्स आर मेड विदाउट एनी एफर्ट। हाँ तो हाँ एक्चुअली दे आर मेड, ही इज राइट इन अ वे, बट हाँ people feel guilty about making money easily. So हाँ people want a complicated system because they want to justify कि जी हमने पैसा बनाया, तो देखो हमने कितनी मेहनत करी, हमने कितने चार्ट्स को ड्रॉ करा, और हमने कितना उस पे इंडिकेटर्स डाले, तब जाके हमें पैसे मिले। एक्चुअली ये सब की जरूरत नहीं है। ये हम्म। सबसे बुरी बिलीफ है ट्रेडिंग में, कि जिससे आपको कई लोग इसी बिलीफ में मारे जाते हैं कि हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, और हम गिल्टी फील करते हैं कि हम इतने आसानी से पैसा बन रहा है। एक्चुअली अगर आपकी बिलीफ ठीक हो और आपका सिस्टम ठीक, रिस्क मैनेजमेंट और वो ठीक है, आसानी से ही पैसा बनता है। एकदम सही, एकदम सही। So Prayan, before we end this, final call from you. Some wisdom, final wisdom. आई थिंक बेसिकली आप देखो सबको और करो अपना। अगर आप कुछ सीख सकते हो किसी से, वो आप सीखो, पर उसको आप अप्लाई थियरेटिक पहले ऑफलाइन अप्लाई करो, देखो कि आपको अपील करता है कि नहीं करता। और फिर भी अगर आप उसको ट्रेड, अगर आप अपील भी करता है, तो इमीडिएटली नहीं चलेगा आपके लिए, उसमें आपको और भी लेयर्स ऐड करने पड़ेंगे। तो एंड टाइम लगता है, मतलब ऐसा नहीं है कि लोग इम्पेशेंट बहुत हैं, आपको लगेंगे 2 या 3 साल लगेंगे। वो जो थियोरी है, मैथ्यू साइड की वो किताब है बाउंस, एक्चुअली मैथ्यू साइड इज वन पर्सन आई नो बिकॉज आई यूज्ड टू प्ले टेबल टेनिस, एंड he was also a UK table tennis player, and he's written this book on bounce, where he says that you require 10 years, he says 10 years to do something well. And Malcolm Gladwell has said 10,000 hours, which means 1,000 hours a year to 10,000 hours. So 10,000 hours to शायद यस, अगर आप तेंदुलकर को देखो या किसी को देखो, तो एक्चुअली जो पीक पे उनको आने में 10 साल लगे। जी। वो ठीक है, वो शुरू से ही उनको टैलेंट था, पर जो उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है, द्रविड़ को देख लो या किसी को देख लो, तो वो उनको उतना टाइम लगा। और ट्रेनिंग में आप जाओ, तो ट्रेनिंग में आपका कुछ नहीं होने वाला, मेंटरिंग में होता है। मुझे भी एसएमबी में जो what I'm grateful to, I learned training में, what I learned from them I can learn from the web also, but I needed someone who could, when I started trading, look at what I was doing and point out कि ये तुम शायद think, first you have to get into the other person's shoes and see what he is doing and what you think he is doing wrong, and then correct him. So that is mentoring. तो इंडिया में mentors बहुत कम है। I don't think किसी के पास टाइम है, या someone can afford to pay how much it will cost, for a mentor to spend that much time with you. So if you can find a good mentor, or if you can work in a good group, and where you can, instead of discussing strategies, if you can discuss your styles and pick holes in the other person's way of trading, and look at your own thing very objectively, that will give you a far better result than looking at strategies and looking at calls, trading calls, and looking at MTMs of other people. True. So Pran, thank you so much. It was such a fun and pleasure to interact with you, and I hope you also had decent interaction with me. Oh, it was wonderful. Thank you so much, Vivek. Look Thank you forward so to seeing you much. again. We'll be in touch, and I'll love to meet up with you when I'm there in Bombay next time. Yes, please do get in touch with me when you are in Bombay next. Thank you. Bye-bye. Thanks a lot. Bye. Bye.